Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English Production. Myself, Imran Aliwai. Today we are going to learn a few words that might help you in CSS, or you want to boost up your English vocab, or you want to have an impressive writing. In these words, I'm gonna introduce you that these words are used in most important fields in official, or you wanna impress someone that might help you. These are the 15 words in the part 1 with a slight touch of Urdu so that my Pakistani friends could get help from this. And then there are a lot of words, there are synonyms of it. So let's get started. Keep listening this lesson and then keep practicing this and keep replacing जब कभी आप पैराग्राफ लिख रहे हो और जब कभी आपको इनको अच्छे से रिप्लेसमेंट देना हो वर्ड्स को, तो ये वर्ड्स आपके मददगार होंगे, फ्रेंड्स होंगे. So let's get started. The first word that we have over here is anomaly. When something is odd without any position that can be understood, like something that is abnormal, unclear and uncertain. बेतरतीब सा माहौल होना, बेतरतीब सी चीज़ होना, बेतरतीब सा वाक़या होना, अनॉमली सा होना जिसकी समझ ना आए, और ऐसी चीज़ जो ऑड सी हो. As the synonyms we have oddity, peculiarity, abnormality, irregularity and inconsistency that is not having consistency. I found genetic abnormality in his blood sample. That is an example for anomaly. Anomaly means having or showing no definite order or having oddity, something that is abnormal, uncertain and unclear. The next word is equivocal. Equivocal. That is having a lot of question in your mind, open to more than one interpretation, ambiguous, गैर वाजे और गैर ऐसी चीज़ जो किसी जाना भी ना जाती हो. For example, ambiguous, indefinite, definite ना होना किसी चीज़ का, not committal, vague or indeterminate. The judge made an equivocal decision which was not biased towards any of the party. ऐसी चीज़ जो किसी की तरफ भी ना जाए, impartial भी ना हो किसी तरफ, impartial हो किसी तरफ, partial ना हो किसी पार्टी की तरफ. Lucid, that is, you can say clear, easy to get, easy to understand, expressing something. वाज़ेह, quite easy, intelligible, comprehensible, cogent, coherent, एक तरतीब के साथ, साफ. Today's lecture was so lucid that everyone could easily absorb, everyone could easily get, everyone could easily understand. Why? Because it was lucid. The first slide that is teaching you anomaly, equivocal, lucid. Anomaly बेतरतीब होना, odd से होना, equivocal मुतशबा यानी जिसमें भी शक व शुबहात हो, क्लियर ना हो, अनक्लियर हो कोई चीज़, गैर वाज़े ही कह लें, ये ऐसी चीज़ जो बहुत सी क्वेश्चन आपके माइंड में छोड़ जाए, जो किसी पार्टी की तरफ भी उसका रुझान ना जा रहा. और ल्यूसिड जो वाज़े हो, आसान हो, जिसमें आपकी तलबी जो है वो पूरी हो चुकी हो, आपके जहन को तस्कीन मिले कि इसका सवाल मज़ीद मेरे माइंड में नहीं है. The next slide is teaching you 3 more words with the starting SUH, सूद करना, तस्कीन देना, सुलेस देना. जब कोई अनप्लीजेंट सी फीलिंग हो, उसको उसकी इंटेंसिटी को कम करने वाला, सेटिस्फाई देने वाला, स्पेसिफाई करने वाला. SUH, relief, ease, alleviate, soothe, mitigate, dampen, allay, placate. The latter assuages the fear of most member. SUH, you got the feeling. SUH, कम करना ऐसी चीज़ को जो डर हो, ख़तरा हो, वो ख़त्म हो जाना, कम हो जाना. पैसिफाई,
कर देना, satisfy कर देना, यानी mostly when you're gonna satisfy in the market, lot of customer officers, they are gonna help you, they are gonna assuage you with their words and conversation to you. Erudite, having a lot of knowledge, giving extra knowledge, showing you that I know everything, well learned, alim fazil. Scholarly, well educated, knowledgeable, well read. He could turn any conversation into an erudite discussion. It means he knows anything. He can talk on any discussion because he knows many things. He knows everything, I might say. Opaque, ऐसी चीज जो शफाफ ना हो, धुंधली सी हो, गैर शफाफ, not able to be seen through, यानी एक चीज से दूसरी चीज का एंड से नजर ना आ रहा हो. सिंपल एग्जांपल है कि अगर एक आपके पास एक आईना होता है, एक शीशा होता है, ग्लास होता है, अगर ग्लास डोर में से इर्द गिर्द आमने सामने थ्रूली नजर आता है, इट मीन्स वो ट्रांसपेरेंट है. अगर नॉट ट्रांसपेरेंट हो तो फिर वो ओपैक है. नॉट ट्रांसपेरेंट, क्लाउडी, फिल्मी, ब्लर्ड, smeared, hazy. Bottle filled with a pale opaque liquid. ऐसे पानी से बोतल भरी थी जो जिसे आर पार नजर भी नहीं आ रहा था. Opaque liquid था. Opaque, erudite, assuage. Assuage एक तो होता है खतरा टाल देना दिल में, गम कम करना, दुख कम करना, तकलीफ कम करना, डर को कम करना, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मार्केट में आपसे ऑफिसर जो है वो आपको सेटिस्फाई करता है चीज़ों से, मार्केटिंग के थ्रू आपका जहन जो है वो सुकून में डाल देता है कि इसकी हमारे पास जो चीज़ें हैं, जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो ओवरडेट नहीं है, एक्सपायरी नहीं है, हम हर चीज़ का एक अलग सा इलाज रखते हैं, हम सर्विस अच्छी देते हैं, हम अच्छा बिहेव करते हैं. दैट मीन्स वो एस्यूएज कर रहा है अपने कस्टमर को, पैसिफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. और पैसिफाई की तरफ चलें तो बच्चों को भी पैसिफाई कर सकते हैं. Let's have some mind over these words. That is prodigal, having lot of resources and using it wastefully, recklessly and freely. Using resources freely and recklessly, wastefully, बहुत से resources को फजूल में इस्तेमाल करना, ताकत का मिसयूज करना, पैसों का बहाव करना, wasteful, extravagant, spendthrift, improvident and imprudent. Imprudent, improvident, spendthrift, extravagant, wasteful, wasting a lot of money, having spending money extravagantly. कुछ लोगों के हाथों में सुराख होते, छेद होते हैं, अगर उनको पैसे दे दिए जाएं वो उसी वक्त ख़त्म कर लेते हैं. कुछ लोग ताकतवर होते हैं लेकिन ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं. सो prodigal using any resource freely, using any resource recklessly, using any resource wastefully. Prodigal habits die hard. Prodigal आदत जो है वो बहुत मुश्किल से ख़त्म होती हैं. एनिग्मा, दैट इज़ लाइक मुएम्मा. और जैसे आजकल एक वबा चली हुई है, एपिडेमिक है हमारे पास, एक ऐसी वबा जिसका मुएम्मा अभी तक हल नहीं हो सका, पता नहीं चल पा रहा, एक एनिग्मा सा है, एक राज सा है, मिस्टीरियस सा है. आया कि इंसान ने बनाया या फिर वैसे कुदरती तौर पे अवामल से बना. अ पर्सन और थिंग दैट इज़ मिस्टीरियस. थिंग से मुराद कोई भी चीज़, जैसे वायरस है, और पर्सन कोई भी शख्स जिसकी समझ ना आए वो हमारे लिए मुएम्मा होता है. हो सकता है वो अजनबी भी हो सकता है कि हो दोस्त ही मगर उसकी समझ ना आती हो, हमारे लिए वो अनिग्मा है, मुएम्मा सा है. सो मिस्टीरियस होता है वो, और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो. मिस्ट्री, पजल, रिडल आपने अक्सर सुना होगा जब क्वेश्चन आंसर में आपसे कुछ सवालात इस तरह से किए जाते हैं कि आपको काफ़ी सोचना पड़ता है, वो आपके लिए एक मुएम्मा सा होता है. पजल भी आप गेम खेलते हैं. So paradox and problem, you can understand what is problem. Problem is also like एक सीक्रेट होता है ना. प्रॉब्लम अगर हम समझ ना पाए, समझ जाएं तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहती. हम प्रॉब्लम को भी एक वर्ड में एडजस्ट कर सकते हैं मुएम्मा के तौर पे, एनिग्मा के तौर पे. His friend was still an enigma to him. Fervid, जैसे हम टनाटन होते हैं लोग, एक चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कठोर होते हैं एक पार्टी में, एक जमात में, कि हम पक्के हैं. सो जोशीला होना किसी चीज़ के लिए. Intensively, enthusiastic, having intense in passions. So passionate especially to an excessive degree, एक हद से भी ज़्यादा, बहुत ही आगे, स्पोर्ट करना किसी चीज़ को, जयाला बन जाना. Fervent, ardent, passionate, impassioned, intense, vehement. Because I am concerned
About my daughter's education, I'm a fervent supporter of education reformation. Fervent supporter के कटर उसका supporter हूँ. The enigma of COVID-19 has not been yet expounded, has not yet been explained, has not yet been revealed. Enigma is like a problem, like a closed thing, like a secret, like a mystery. Prodigal, you got my point. The prodigal is like a man who is using a lot of resources, available resources recklessly, without any break, wastefully and freely. He used his powers prodigally. The next word that we have over here is zeal, perjoshona. You know, zeal, determined for something, great energized, having enthusiasm, having a cause or object to do something with zeal, a flair of something, जोश आ जाना, zeal आ जाना, passion, zealousness, ardor, love, fervor. Most of the students showed the zeal for sports. यानी उन्होंने zeal दिखाया, अपना जज्बा दिखाया, जोश दिखाया स्पोर्ट्स के लिए हाँ की. Abstain मतलब निजात में रहना, दूर रखना अपने आप को. To stay away from something, refrain or avoid something. Restrict oneself, forbid oneself, prevent oneself, keep away, refrain. Patience, must abstain alcohol. Apathy, क्या कह सकते, पत्थर दिल, किसी के लिए लगन ना होना, सिंसेरिटी ना होना, लॉयल्टी ना देना, किसी की तरफ कान ना धरना, कंसर्न ना रखना, और आप इंटरेस्ट नहीं रखते, वो आप जब कह सकते हैं एक वर्ड में आई डोंट केयर. ऐसे लोग जो हर चीज़ में कहते हैं आई डोंट केयर, इट मीन्स ही इज अपैथी, इट्स एन एडजेक्टिव. वाइड स्प्रेड अपैथी अमंग स्टूडेंट्स केयर नहीं करते स्टडी की तरफ, तो वो अपैथी हैं. अगर हमारे मोहल्ले में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं, हमें उनकी खबर नहीं, हम अपैथी हो चुके हैं, वी डोंट नो. Adulterate means to mix up something in something to increase its quantity, like render something poorer in quality by adding another substance. एक ऐसे substance को दूसरे चीज़ में मिलावट करके ज़्यादा बढ़ाना, अर्निंग के लिहाज से. डिग्रेड करना, एक तरफ से आप उसकी क्वालिटी कम कर रहे हैं मगर उसका मैस बढ़ा रहे हैं, उसको में सब्सटेंस डाल के. स्पॉइल करना, टेंट करना, डिफाइल करना और कंटेमिनेट करना. चीज़ों को कंटेमिनेट के केसेस होते हैं, यू नो, लॉ होता है, वो लॉ एंड इन्फोर्समेंट में कंटेमिनेशन जो है एक जुर्म कहलाता है. फ्रूट्स में कंटेमिनेट, दूध में क्या क्या चीज़ें कंटेमिनेट की जाती है, जैसे यूरिया के बारे में सुना भी गया है और देखा भी गया है कि काफ़ी चीज़ें पाउडर, बालसफा पाउडर डाला जाता है, कंटेमिनेट किया जाता है. सो कंटेमिनेट मिलावट करना, अडल्ट्रेट मिलावट करना. People adulterate in everything to boost up earning. So adicious word that is like इसके दो मीनिंग बताऊंगा. कुछ आदमी बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं और अपनी बहादुरी का इस्तेमाल अपने बुज़ुर्गों के सामने करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं और ऐसे सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं जो बुज़ुर्गों के सामने उनके सीनियर के सामने, ऑफिस में सीनियर के सामने भी उन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो मना भी हो लेकिन उनके सामने कर लेना ऑडिशियस कहलाता है, ऐसा इंसान. Showing a willingness to take surprisingly bold risks. Bold, daring, fearless, brave, unafraid. ऐसा आदमी जो afraid ना हो. One should never be audacious in front of their seniors. सीनियर के सामने audacious नहीं होना चाहिए. Mostly people try to prove that they are more than the best. कुछ लोग ये भी शो करते हैं कि हम बहुत बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा पावर शो करते हैं, जो कि नहीं भी करनी चाहिए. तो इस मायने में होता बहादुर है मगर गुस्ताख, बेअदब. लेकॉनिक थोड़ी सी चीज़ को वाज़ेह ऐसा करना कि वो ब्रीफली हो मगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपाउंड हो जाए, प्रीपाउंड हो जाए, एक्सप्लेन हो जाए, जिसके लिए काफ़ी चीज़ें माइंड में आ जाएं. जैसे फ्रांसिस बैकन लेकॉनिक राइटर था. कंसाइज और टर्स उसके जुमले होते थे, कंडेंस से उसके ख्यालात जहन में बढ़ जाते थे. इकोनॉमिकल शॉर्ट सा चीज़ लिखनी और बहुत सा उसका मीनिंग वाजे हो जाना जब एक्सप्लेन करना, यानी समंदर को कोजे में बंद करना.
His laconic reply suggested a lack of interest in the topic. Well guys, these are the words, quite easier and helpful for you. Moreover, I want to say, if you want to download this PDF book with a lot of parts, 1, part 2, part 3, until part 10, I have a lot of word about it to explain it to you day by day, but it's good for you to listen this audio every day. You can close your eyes, relax yourself, and then keep calm and start listening this lesson again and again. और जब कभी भी आपको अच्छी राइटिंग करना हो, आप इन लफ्ज़ों को सुने, बार बार सुने, और फिर जब आप राइटिंग करें तो उसके अंदर रिप्लेस कर लिया करें. राइटिंग से रिप्लेस करने से जहन में बढ़ते हैं. पहले आप इजी इंग्लिश में लिखें, कुछ भी लिखना है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसी राइटिंग में इनको रिप्लेस करना होता है. आप सर्च वर्ड्स को जो है वो दोबारा से रिप्लेस कर सकते हैं. सो होपफुली यू गॉट माय पॉइंट. इंशाल्लाह I'll bring this file with more and more new interesting useful words. Have a good time.